National Eligibility Cum Entrance Test. In short, NEET. I'm not going to talk about the controversies surrounding NEET. Let it rest for a while because I have with me AIR1. ARYAN. Aryan Gupta. Aryan, congratulations. Thank you so much, ma'am. Aryan, All India Rank 1. How does that feel? Actually, काफ़ी unbelievable है. मतलब it's been nearly a week or like more than a week, but still I can't believe the fact that I am, rank one amongst 22 lakh aspirants. But 22 still, lakh, rank 1. yeah, but Commendable. somewhere luck also plays a part. But yeah, I'm Luck feeling plays a part how? because uh, in the top 100, I'd not say I'm the smartest. I'd not say I'm the most hardworking. In the top 100, between for those 5 or 10 marks, the fight for the 5 or 10 marks is mostly based on whether it's your day or not. So on 21st June, it was just my day. So I'm going to come to that, like, the top 100, how did you come to know? But before that, I have the most important question to ask of you. Aryan, when you appeared for the first entrance, which was cancelled, how did that entrance go? Actually, it went well, but I wasn't really satisfied with my performance. Oh, so that was another great chance for you? I guess somewhere because I was scoring 696 out of 720. Five questions as I got incorrectly. One question I left, 4 questions I marked wrong. But again, when the renewed announcement was made, I was devastated because it takes a lot of hard work and a lot of grit and a lot of discipline to in this NEET preparation. Uh, a lot of nights you have to sacrifice, a lot of sleep you have to sacrifice, a lot of social stuff. I had to stop playing table tennis. I was a state player, even played nationals. So you sacrifice a lot of things for this preparation, and to see it go all down the drain कि यार 2 साल इतनी मेहनत करी पर यू कैंसिल है, मेरे हाथ में भी नहीं है ये, मैं आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट वही कहीं ना कहीं लगा कि Silver lining, yes. the only silver lining in that dark storm was कि मेरा पहली बार इतना अच्छा नहीं गया था. Did not. But Oh, so see, whatever happens, happens for good. I think पर ये when you've hit rock bottom, the only way is up. मतलब तुम और नीचे नहीं जा सकते. I was at my lowest in my life. मतलब there have been instances, but I was very devastated उस टाइम पे कि अच्छा भी नहीं गया. Especially after NEET 1, I cried a lot कि पेपर अच्छा नहीं गया. पर वही कहीं ना कहीं लगा कि एक और चांस मिला. एक और चांस मिल गया. So tell me one thing, Aryan. I really want to know, and I'm really curious. जब आप एग्जाम दे के आते हो नीट का, तो उसके बाद वो बुक्स के साथ क्या होता है? Do you like give it to somebody, donate, or like okay, I am done? What was that reaction? जब आप दे के आते हो, what's the first reaction? To be honest, मैं आपको बताता हूँ, ये हुआ था कि हल्की सी PTSD हो जाती है कि मैं अगले दिन ही रीनीट या नीट के अगले दिन मैं बुक्स खोल के बैठ गया. This is announced the next day, right? कि रीनीट है नहीं? नहीं, 3rd मई को एग्जामिनेशन थे, 12th मई को अनाउंसमेंट हुई थी कि पेपर हैज़ बिन कैंसल्ड और फिर से होगा. Yeah. तो मैं 4th मई वापस जब घर आके बुक्स वगैरह मैं फिर से पढ़ने लग गया, जस्ट बिकॉज ऑफ हैबिट कि आदत हो गई थी इतना पढ़ने की. मैं सब कॉन्शियसली खुद ही रूम में जाके बुक्स खोलने लगी, मैं क्या कर रहा हूँ मैं. Oh my God. So this happened after you appeared. You just sat for the first exam and came and started reading. My goodness. इतनी आदत हो जाती है ना कि अपने आगे ट्यूनिंग हो, पढ़ना ही है और कुछ करना नहीं है. स्पेशली फॉर द लास्ट 1-2 महीनों में कि तुम बाकी जो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है. मैंने बाकी जगह भी बोला है, पर लास्ट में आके ये होता है सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो दिमाग भी ऐसा हो गया था. पर हाँ, यही है कि भाई मैंने उस रूम में नहीं जाना फिर से. मैंने बुक्स नहीं देखनी फिर से वापस. But फिर से देखनी पड़ी. तो वो जब day 1 एंटर करा कि I have to reappear, तो वो motivation was high और low? Honestly बताना. I was very neutral about it again. Neutral. कि मतलब आदत बड़ा में. नंब हो गया था बहुत कि पहले ऐसा लगा था कि भाई चलो अब तो मेरे हाथ में ही नहीं है. मतलब मैंने अभी बोला था कि ऐसा लग रहा है मूवी चल रही है कि ऐसी कुछ मुझे प्लॉट ट्विस्ट आई जा रहे हैं. ये लग रहा था कि ये आई एम लाइक एन ऑब्जर्वर वॉचिंग ए मूवी और कुछ मर्जी हो ही जा रहा है और आई कैन नॉट कंट्रोल इट. पर वही लग रहा था कि चलो मेरे हाथ में है नहीं. अब द एग्जामिनेशन जो होगा विल बी इनएविटेबल, होना तो है ही अब 40 दिन बाद. तो चलो क्या ही फ़र्क पड़ता है. लेट्स गिव इट माई बेस्ट शॉट.
और सो यहाँ पर जब नीट दोबारा अनाउंस हुआ तो पीयर प्रेशर आता है क्या ऐसे टाइम? एक्चुअली तब सभी मेरा जो मेन पीयर ग्रुप है सारे मेडिकल के ही हैं, नीट प्रिपरेशन ही कर रहे हैं. All the more reason to ask this question. How was the motivation? Were they distraught? Were they? I mean, what was? I really want to know कि आप सब बच्चों की जब पता लगा कि दोबारा अपेयर करना है नीट के लिए, तो आपके वो जो पेयर ग्रुप था जो सारा नीट के लिए, जो सारे बच्चे नीट के लिए अपेयर कर रहे थे एंड रीअपेयर करना पड़ा, क्या कॉन्वर्सेशंस क्या थी? एक्चुअली मेरी बात हो ही नहीं पाई. सभी एज सच वो ऐसे हल्के से ट्रॉमा में चले गए थे ओह, कि अगेन कि मेरा चलो फिर भी 696 आए थे, मेरे दो दोस्तों के 715 आए थे. oh my goodness! They were scoring more than they have scored in any mock test, and I was scoring less than I have scored in any mock test. Oh my God! तो बाकी सब मैं I'd say I was a bit lucky in my case. ये था कि जो पहला एग्ज़ाम था वो ना कंपैरेटिवली हर एग्ज़ाम से जो यूजुअली नीट होते हैं सबसे इजी था. नीट 24 का जो 24 में लिया गया था और इस साल का जो पहला नीट था, दे वर रिलेटिवली वेरी इजी. Oh, तो जब इजी होता है बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा फिर अच्छे आते हैं परसेंटाइल पे आ जाता है ना? कि Right. तुम्हारी रैंक चाहे मार्क्स अच्छा आए 696 बुरा स्कोर नहीं है, पर रैंक बहुत पीछे चली जाती है मेरी उसमें, है ना? तो बहुत लोगों के उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा चला गया था, है ना? मेरी अपने इंस्टीट्यूट के अंदर मैं एक भी हज़ारों में से एक टेस्ट होगा जिसमें आई वाज स्कोरिंग सेकंड, और इसमें मैं 5th या 6th आ रहा था अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ही. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई वाज लकी इन बाउंसिंग बैक. That's वो good. एट अ वेरी पर्सनल लेवल Wow. मुझे था कि एक और मौका मिले. Wow. पर अगेन जब रीनीट की अनाउंसमेंट आई, दोस्तों से इतनी बात नहीं, सभी वही जो गिफ्ट्स वगैरह लिए थे, नया आईफोन, नया आईपैड, नया पीसी, सब कुछ बंद बुंद करके वापस रख के वापस पढ़ना बैठना पड़ा. तो हाँ, बुरा तो लगा ही था, सब पूरी इंडिया को ही बुरा लगा था. अब That's right. तो ऐसा ही है. तो जो नीट की आपकी प्रिपरेशन थी, जैसे कि ना एक टाइम पे कहते थे जो आईएएस बच्चे हैं वो इन पर्टिकुलर बिहार स्टेट से बहुत होते थे, क्योंकि पेरेंट्स 5th 6th से ही ना बच्चों को, आई डोंट नो हाउ द सीन इज़ नाउ, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर किड्स कि वो 5th 6th से बच्चों को कहते थे कि बेटा आप आईएएस की तैयारी शुरू कर दो. सो नीट की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए आइडियली? नीट की तैयारी में तो 11th और 12th ही सही होती है. सही. 11th में शुरू करो, पर मैंने पर्सनली मैं फर्स्ट क्लास से ओलंपियाड से तैयार हूँ. अलग अलग तरह के ओलंपियाड्स होते थे, वो देता था. कुछ अलग अलग टैलेंट एंड एग्जामिनेशन दे दिया, कोई पेपर्स अलग अलग दे दिए. तो ये तो फर्स्ट क्लास से चलता आ रहा है, ओके. पर प्रॉपर रिगरस कोचिंग मैंने 11th और 12th में ली. 11th to 12th में. सो आपको लगता है अगर 11th और 12th में ही रिगरस कोचिंग ले, दैट इज सफिशिएंट, विल इट सफिस मतलब अगेन कि टू अगर आप क्रैक नीट? हाँ, अगर आप 11th 12th में कर रहे हो और पूरी डेडिकेशन पूरे डिसिप्लिन से कर रहे हो, फिर ऑफ कोर्स यू कैन क्रैक. सो अब आपने दो वर्ड्स यूज किए, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन. आई वुड वांट टू नो कि डेडिकेशन में क्या एस्पेक्ट्स आते हैं और डिसिप्लिन में क्या एस्पेक्ट्स आते हैं. एक तो डेडिकेशन मतलब कि अपना एक धर्म मान लो, पढ़ाई करना तुम्हारा धर्म है, कि मेरा एक ही काम है करना, पढ़ाई. बाकी चीज़ सेकेंडरी, सब कुछ सेकेंडरी. अब ब्रेक्स लेना चलो ज़रूरी है, फैमिली से बात करना ज़रूरी है, फ्रेंड्स रखना ज़रूरी है, बाहर जाना ज़रूरी है, पर सबसे प्राइमरी तुम्हारा जो गोल है पढ़ाई करना. फॉर To एनी show up- एंट्रेंस? हाँ, फॉर एनी एंट्रेंस, टू Yes. शो अप एवरी डे इवन व्हेन यू डोंट वांट टू. ओके. कि जब बिल्कुल तुम रो रहे हो, पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं, तब भी पढ़ना. जब बुक्स खोली जाए तब भी बुक्स खोलना. वो चीज़ वो डिवोशन होनी चाहिए ये 2 सालों में प्रिपरेशन के लिए. डिसिप्लिन आया टू पुट इन द आवर्स. अगेन कि जब तुम पढ़ रहे हो, बात क्या होती है कि हम कई बार पढ़ते हैं, आउटपुट नहीं निकल पाती, क्योंकि मैं मान लो कोई ए चीज़ पढ़ रहा हूँ, ध्यान बी चीज़ पे है, बी चीज़ पढ़ रहा हूँ, ध्यान सी चीज़ पे है. तो तुम फिजिकली यहाँ बैठे हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और है. वो दिमाग को वापस यहाँ लाना कि तुम क्या पढ़ रहे हो, सिर्फ उस पर ध्यान देना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो वो डिसिप्लिन हर दिन प्रैक्टिस करते करते फिर तुम्हारी आउटपुट बहुत बेटर हो जाती है. तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, और वो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होती है विद कंसिस्टेंसी. एंड आई वांट टू नो AIR1 कौन सा कॉलेज ऑप्ट करता है? मेडिकल में तो आई विल ऑप्ट फॉर एम्स दिल्ली, और यूजुअली जो टॉप 48 ओपन कैटेगरी में होते हैं, दे ऑल ऑप्ट फॉर एम्स. Another important thing that if you're preparing for NEET, so which board do you think is more conducive to the NEET setup? Actually, Examination I think setup. again, the CBSE board is the most optimum board for preparation of NEET. Personally, I did Cambridge, IGCSE till 10th, and then I switched to CBSE in 11th and 12th.
But I think for 11th and 12th, you cannot have conflict of subjects or conflict of topics because the NEET syllabus itself is so vast that you'll become tired just covering that. And doing something else alongside it is an impossible task to do. Impossible, yes. I So don't know. focus, yeah. So my next question was on focus. So when it comes to NEET preparation, what should be the focus? Yeah. अगेन मैं ये एनालॉजी इस्तेमाल करता हूँ कि अगर आप पानी है आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, तुम्हारे पास 3 बाल्टी हैं या फिर एनी नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ अमाउंट्स ऑफ क्या कहते हैं बकेट्स हैं, तुम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर है तुम्हारे पास, अब तुम 1 बाल्टी में डाल रहे हो, तुम 3 बकेट्स में डाल रहे हो, 5 बकेट्स में डाल रहे हो, अगर जितनी नंबर ऑफ बकेट्स बढ़ाते रहोगे अमाउंट ऑफ वाटर पर बकेट कम होता रहेगा। तो तुम जितना ज़्यादा अलग अलग पाथ्स चूज़ करने की कोशिश करते हो, इसलिए अब यूजुअली पीपल डू नॉट रिकमेंड सुपर मेडिकल अलॉन्ग विद मैथ्स, क्योंकि ना तुम ढंग से बायो कर पाते हो, ना ही तुम ढंग से मैथ्स कर पाते हो। मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग, इन माई ओपिनियन, जो तुम कर रहे हो सिर्फ उस पर ध्यान दो। अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो सिर्फ नीट पे ध्यान दो, और कुछ ओलंपियाड्स की अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी आज सच सिर्फ नीट की तैयारी करी थी, मैंने ओलंपियाड्स दिए, केमिस्ट्री बायो के ओलंपियाड्स होते हैं, NSCC एंड NSCB, Okay. उनमें टॉप 10 ऑनली मेरिट में आया था रैंक मेरा। तो और मैंने उनसे कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, कोई अलग से टेस्ट नहीं दिया था, पर फिर भी आ गया। तो जो नीट की प्रिपरेशन इज ऑलरेडी वेरी वेरी वास्ट, Alright. इवन आफ्टर ऑल द सिलेबस कट्स, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा वास्ट लगता है, और होना भी चाहिए, बहुत डाइवर्स सिलेबस है। तो वही करते करते तुम्हारी बुरी हालत हो जाएगी, वाई डू एक और चीज़ क्यों पकड़ना। So now let's talk about the percentage here in your life for becoming AIR1, for the most, I think one of the most difficult exams of the country, and of course the most reputed, because eventually, Aryan, you will become Dr. Aryan Gupta, right? And you would be healing people. So have you ever thought what branch would you get into for your MD? Have you decided, or you'll wait and watch? थर्ड क्लास में डिसाइड कर लिया था कि आई वांटेड टू बिकम एन oncologist. Oh, and why is that? एक्चुअली कि थर्ड क्लास के अंदर माई ग्रैंड मदर पास्ट अवे बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। शी वाज डायग्नोज्ड विद स्टेज 4 कैंसर, और ये लगता था कि यार मेरे मम्मा इतने बड़े डॉक्टर हैं, मेरे पापा इतने बड़े डॉक्टर हैं, सारा परिवार डॉक्टर्स का है, स्टिल हम वी कुड नॉट सी दैट कमिंग कि वी कुड नॉट डायग्नोज इट बिफोर इट बिकेम टर्मिनल। वी ट्राइड एवरीथिंग बट वी कुड नॉट सेव हर, और आई एम स्टिल स्कार्ड till date. I'm still scarred. Grandparents are very precious, Aryan, I can understand, yes. And I don't want that scar etched into anyone's heart or brain. So I just promised myself कि it's a childish dream कि do something to help people, to help the world. Wonderful. Hopefully become a good doctor and good person. And we wish you all the best. Thanks. Now, Arun, coming to an interesting question, okay, which could be a little tricky for you as well. So let's talk about the percentage. So we will divide it into 4 parts. So what percentage, in terms of their support or being with them, or their value of, how do I put it, what word can I use, their contribution in your success in becoming AIR1 for NEET. So your parents, yourself, your coaching, and your school. So first everything, if सारी हेल्प हो भी, अगर तुम मेहनत डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, even you get all the help in the world. So I'd say I'd put myself at 60%, I'd say. And parents along with brother. Yeah. आदित्य का बहुत रोल था. I'd say 30%. Okay. No, actually, it's kind of difficult. I knew. I told it's tricky. Think about it. That's Even okay. the teachers help you a lot. So I'd say I'll put myself at 50%. I'll put family and my brother at 30%. Coaching at 15% and school at 5%. School support tha? That you miss sometimes you have to miss your classes, right? Again, they have to be supportive enough. I understand that school they need to maintain their discipline in terms of classes that you have to attend, the attendance, the requisite attendance. But for NEET, you need to put in extra. So do you think that schools should be, they should really open up, they should be more magnanimous or, more helpful towards children? Again, I think I was very, lucky in which कि मेरे स्कूल ने कभी ऐसा झंझट नहीं पाया कि आपको इस दिन आना ही आना है, इतनी अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए. सो आई थिंक इट वाज वेरी हेल्पफुल कि मैं जब छुट्टी करके घर पे पढ़ना था, आराम से पढ़ पाया विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द स्कूल साइड.
So I think they should be a bit loose on their end, I think. But I was lucky in having that. Wonderful, great. Now, one last question, which I think is, which always, hovers over my mind, that considering the education system of our country, now, especially the entrance examination, don't you think the 12th class, as in like the scores of 12th class have been reduced to almost redundant? Of The CBSE. boards, yes. Actually, I don't think so, because the thing is, uh, you have to become doctors. This NEET examination will decide. I'm in really which- interested. I'm really curious to know what your answer is, Arun, because all that you've, all the answers that you've given doesn't come off as if somebody who's just cleared his 12th. So they're quite of a visionary. So yes. तो ये होता है कि जब जब तुम कर रहे हो, you have to become a doctor. ये वो एग्जामिनेशन विच विल डिसाइड इन विच कॉलेज यू विल एंटर, कैसे MBBS करोगे, आगे कैसे फिर MD करोगे. पर MBBS विल डिसाइड कहाँ है तुम MBBS कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक जितनी सब्जेक्टिविटी रिमूव करी जाए उतनी बेटर है. You think so? आई रियली डू थिंक सो, बिकॉज यू नो व्हाट आई हैव रिटन, मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, जो टीचर विल चेक उनका परसीव करने का तरीका अलग है. तो बहुत सारे बाउंड्रीज क्रिएट हो जाते हैं. उन बाउंड्रीज के चक्कर में देयर विल बी मिसकम्युनिकेशन. थिंग विद नीट इज, इट इज़ वन ऑफ द फेयरेस्ट एग्जामिनेशन. JEE, UPSC, NEET, they all are the most fairest examinations I have ever seen, because वो सब्जेक्टिविटी वाला पार्ट बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है कि ओके जितनी तुमने पढ़ाई करी, अब 2 साल बहुत सारी रिग्रेस पढ़ाई करनी है, सब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी होती है. नीट में होता है यू हैव अ क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस, यू हैव टू पिक वन. अब इस सब्जेक्टिविटी से OMR है, OMR के कारण वो कंप्यूटराइज सब कुछ हो जाएगा. दी ह्यूमन वर्कलोड बहुत रिड्यूस हो गया, क्योंकि जितने 23 लाख 22 लाख स्कैंड OMRs हैं वो सारे कर तो कंप्यूटर ही चेक कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे. Right. इतनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गया. सो देर आर लेस चांसेस ऑफ Error. देर आर लेस चांसेस ऑफ करप्शन. Yes. अब ये इतनी कंप्यूटराइज, क्योंकि जितनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी देयर विल बी अ ग्रेटर चांस ऑफ एरर, ग्रेटर चांसेस ऑफ करप्शन अगेन. Yes. तो आई थिंक वन ऑफ द फेयरेस्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशंस जो हमारे कंट्री में भी हो रही हैं, बाहर भी, गाँव भी, दे ऑल ऑब्जेक्टिव मोड्स ऑफ एग्जामिनेशंस. तो आई डोंट थिंक कि इम्पोर्टेंस ऑफ नीट और JEE शुड बी रिड्यूस्ड टू ऑल अब जैसे ही अभी है. अगेन कि नीट वो ऐसा एग्जाम है विच विल डिसाइड वेयर यू विल गो टू बिकम अ डॉक्टर. But 12th की रेलेवेंस कम नहीं हो जाती? ऐसा नहीं है. जो CBSE की बोर्ड के रिजल्ट्स हैं, दे डू रियली हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ कॉलेजेस. फॉर एग्जांपल एनी पंजाब स्टेट के कॉलेजेस या फिर ऑल इंडिया कॉलेजेस. बट आई थिंक कि अगर तुम 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, दोनों की तैयारी पैरेलल होती है. यू डोंट नीड टू स्टडी सेपरेटली फॉर 12th बोर्ड्स और स्टडी सेपरेटली फॉर नीट, बिकॉज अगेन मैंने 2 साल नीट की तैयारी करी है. ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स की तैयारी अलग मैं क्वेश्चन लिखता था, क्योंकि अगर तुम नीट की तैयारी इतनी अच्छे से कर लोगे तुम्हें वो क्वेश्चन रटने की लोड नहीं कि कैसे लिखने हैं, कैसे वर्डिंग करनी है. एंड आई वाज स्कोरिंग प्रीटी वेल, मतलब ऐसे कि टॉपर पर ही नहीं, 97.2% आ रहे थे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट इन बोर्ड्स. Oh, that's wonderful. That's amazing. So my last question would be to you, would not be a question, it will be an advice. What advice do you have for 2 categories here, especially considering that you are AIR1, so especially for those who are appearing for NEET or those who could not clear a reappearing, maybe did not scored well, and for students in general? So first of all, I'd say कि follow your teachers blindly. Again, they know much more than you do. They've been teaching for a way longer time than you have been studying. वो लोग 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, and you are just 1 day 1 month or 2-3 months old in this preparation. So they have much more experience. So follow them blindly. Do whatever they say. जो भी काम बोला, जो भी एडवाइस दी, जो भी DPPs असाइनमेंट्स दी, वो करते रहो दिन का हर दिन. और बहुत डाउन लगेगा, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होगी, टेस्ट ख़राब गया, बहुत रोना आएगा, लेट इट ऑल आउट. बट जस्ट रिमेंबर कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो, वापस जाके पढ़ना ही है, वापस उस स्टडी टेबल बैठ के पढ़ना है फॉर दिस 2 years. और ये होगी हल्की प्रैक्टिकल बात होगी कि फॉलो योर टीचर्स, चाहे तुम जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो. सेकेंड, अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो. मैंने 2 साल अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखी थी कि मुझे AIR1 लाना है, मुझे एम जेल ही चाहिए, एंड आई कैन नॉट सेटल बिलो दैट. 2 साल अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखी. आई डोंट नो दैट.
जब नीट वन दिया तो अच्छा नहीं गया, स्ट्रेस से लिया. इट वॉज अ वेरी ईजी एग्जामिनेशन. स्टिल आई वॉज नॉट स्कोरिंग एनी वेयर नियर माई एक्सपेक्टेशंस. तो तब लगा, बहुत डिसहार्टेंड हुआ. तब मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि भाई मैंने अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख ली, क्योंकि मैंने ऐसा क्या उखाड़ा है ज़िंदगी में, क्या किया है कि मैं अपने आप से इतनी एरोगेंस रखे बैठा हूँ, इतनी एक्सपेक्टेशन रखे बैठा हूँ. तो वो आई थिंक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिल गया नीट के चक्कर में कि अपने आप को कुछ ना समझो कभी. चाहे तुम मॉक टेस्ट अच्छा भी गया है, बुरा भी गया है, दैट्स ऑल इन द पास्ट. और वॉट यू कैन डू इज़ कंट्रोल द प्रेजेंट. और वो भी तुम्हारे हाथ में 80% या 90% मेहनत होती है, बाकी भगवान की कृपा और लक होता है. एंड दैट अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल क्रिएट योर ओन लक. So Arun, I would not let you go unless I ask you this question कि आपका जो रूम है उसके बारे में हमको बताओ कि जो इतनी शिद्दत से बच्चे पढ़ाई करते हैं एंड यू नो हु बिकम टॉपर्स और यू नो स्कोर वेल, सो व्हाट इज इट, व्हाट्स सो स्पेसिफिक अबाउट योर रूम जो आपको लगता है दिस इज माय स्पेस एंड दिस इज हाउ इट शुड बी? मेरा रूम ऐसा तो हल्का सा मेसी रहता था, पर मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में ये किया कि जो मुझे चीज़ें पता है कि मैं फिर से नहीं पढ़ने वाला, कि लास्ट मंथ में आके होता है कि रेलेवेंस तुम देखने लग जाते हो चीज़ों की क्या है, कि ये चीज़ बाबर ही पढ़नी है फिर से, ये चीज़ नहीं पढ़नी, तो आई जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ स्टिकी नोट एंड पेस्ट इट. अगर आप मेरे रूम में देखोगे तो मेरा रूम इज़ फिल्ड विद स्टिकी नोट्स ऑफ ऑल काइंड्स. और मैंने वो सारे स्टिकी नोट्स 1 आवर बिफोर एग्जामिनेशन 12 o'clock निकले थे, 10:30 11 o'clock पढ़े, 1 घंटा पढ़े, और जेन्युइनली दे हेल्प मी विद 10 मार्क्स. रियली? हाँ, इन बायो में मैंने एक चीज़ पढ़ी थी उस दिन ही, एंड वो मुझे बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी में था और तब याद आ गया. That's wonderful. तो अगर आप रूम देखोगे, इट इज़ फिल्ड विद स्टिकी मार्क्स. Wonderful. Anything else that you know the other students can learn from your room? रूम में आज सच तो मेडल्स वगैरह रखता था, वो बचपन से स्पोर्ट्स के, Any पढ़ाई के. motivational quotes or anything? Okay, who inspired you the most? अगेन 2 साल में तो मेरा बड़ा भाई रहा. What does he do? मेरा बड़ा भाई, ही इज़ आदित्य गुप्ता. ही इज़ स्कोर्ड ऑन द रैंक 54 इन नीट 2025. और उनका क्या कहते हैं, ही इज स्टडिंग इन MEMC दिल्ली. Okay. पर अगर आप ऐसे कोई रोल मॉडल फिगर देख रहे हो तो एक कोबी ब्रायंट है, आई फॉलोड हिम अ लॉट. Yeah. कि वही है अगेन कि Why? चलो अगर सक्सीड कर गए, वेल एंड गुड, यू स्टिल हैव टू वेक अप टुमारो एंड डू द सेम वर्क अगेन. अगर तुम फेल कर गए, सक्स, कि चलो कोई ना, बुरा हुआ, फिर भी यू हैव टू वेक अप टुमारो अगेन एंड डू द सेम वर्क. तो इफ़ यू आर सक्सीडिंग और फेलिंग, इट डज नॉट मैटर टुमारो, बिकॉज कल तो सेम काम ही करना है. अगर जीत रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर इफ़ यूर फेलिंग, ये तो इसलिए मुझे ये चीज़ सीख ली कि अपने आप को डाउट करना या फिर अपने आप से बहुत ज़्यादा डरना कि यार मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं है. वो सिर्फ माइंड तुम्हारा मेंटल बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है. तो आई थॉट कि देखो मेरे कंट्रोल में क्या है, कि सिर्फ प्रेजेंट कंट्रोल करना, जितना पढ़ सकता हूँ वो कंट्रोल करना, जितने ढंग से पढ़ सकता हूँ वो कंट्रोल करना, और वही किया मैंने. और ये चीज़ जो माम्बा मेंटालिटी है उसने बड़ी हेल्प करी. Mamba mentality. What's that? जी, ये कोबी ब्रायंट का था कि इफ़ यू नॉट वेरी गुड एट, देखो Mamba means is that an acronym? एक्चुअली ये क्या कहते हैं, स्नेक, कि जो कोबी ब्रायंट का बस एक एक्रोनिम है जो फॉर कोबी ब्रायंट, ही पास्ड अवे. Yeah. पर यही है कि ही वाज आल्सो नॉट वेरी गुड एट एवरीथिंग, नॉट एक्सेलेंट, नॉट अ prodigy in much of anything. So he had to work hard a lot more. He had to study the game a lot more. He had to, put in the hours a lot more than everyone else. So I thought कि okay, मैं कोई prodigy नहीं हूँ. I'm not the most intelligent guy. I'm not the most talented guy. I can work hard. जितना मैं कर सकता हूँ, जो मेरे दायरे में है, मेरी कैपेबिलिटी में है, वो किया मैंने. और वही you can create your own luck. Yes. I think I created my own luck. God was with me. और फिर पेपर दे दिया अच्छा से. So, Arjun, considering that you are AIR1, so of course, you said the last 2 years was totally dedicated to studies. You left everything. So we are really curious to know, apart from studies, what are your hobbies? Actually, again, I was a table tennis player. I still play table tennis. मैं स्टेट प्लेयर था और नेशनल्स भी खेली है. 2 नेशनल्स में कोई रैंक नहीं है मेरा, पर स्टेट लेवल रैंकर था मैं. काफ़ी अच्छी मुझे लगता है मैं अच्छा खेलता था काफ़ी. तो 3-4 साल वो खेला. 11th-12th में ड्रॉप करना पड़ा. 11th में फिर भी ऑल्टरनेट डे खेलता था. 12th में तो बिल्कुल ड्रॉप करनी पड़ी गेम. और आई यूज्ड टू प्ले द कीबोर्ड पहले. आई प्ले द गिटार नाउ. और मुझे एनिमे का बहुत शौक है. नेटफ्लिक्स बिंज करना, एनिमे देखना बहुत शौक है. तो मैंने वही 11th और 12th में ब्रेक्स के लिए
नेटफ्लिक्स की सीरीज है सूट्स खत्म करी थी. अच्छा. एक एनिमे वन पीस और हाइक्यू वो One Piece is my favorite too. Did you watch the part 2? वन पीस पार्ट 2 One Piece का part 2 भी आ वो गया. सीजन 2 Yeah, the season जो 2. पहले सीजन में 1000 एपिसोड्स थे कुछ. Yeah, अच्छा, okay. That one नहीं. I just watched the One Piece. वो लाइव एक्शन. हाँ, yeah, I watched the anime which is like अच्छा. 1100 Oh episodes. my God, you did that? What class were you in when you did that? 11th and 12th. I hope kids are not listening, but that's नहीं, good. You know, that's a good way to unwind. Yeah? हाँ वही अगेन कि भाई मतलब अगेन की गाड़ी चलेगी नहीं अगर तुम फ्यूल नहीं डालोगे. That's true. That's true. So you play keyboard and you play guitar. What's your favorite song? एक गाना था अरिजीत सिंह का अगर तुम साथ हो. So do you still play keyboard and guitar? एक्चुअली आई लर्न इट इन क्लास 6 और 7th और 3 साल सीखा 11th 12th बिल्कुल ड्रॉप कर दिया तो अब तो काफ़ी भूल चुका हूँ. पर वही है कि जब एक्चुअली यू डू नॉट एक्चुअली फॉरगेट हाउ टू प्ले बट मेरा सीखने का तरीका गलत था क्योंकि आई डिड नॉट लिसन टू माई टीचर्स. मुझे लगता था कि मुझे तो बहुत अच्छा आता है भाई मैं तो यूट्यूब से ही सीख लूँगा पर तरीका गलत था सीखने का. सीख भी नहीं पाया और अभी भूल भी गया. तो लेकिन 11th और 12th में ये सिखा दिया कि भाई तुम नहीं होते समझदार क्यों एरोगेंस रख के बैठे हो. और वो है कि अपनी जो टीचर्स तुम्हें बोल रहे हैं जो तुम्हें टीचर समझा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सही बात है. हमें लग सकता है कि यार हम तो बहुत ज़्यादा सही हैं पर टीचर्स गलत है. दैट्स नॉट ट्रू. सो ये काफ़ी 11th और 12th स्पेशली नीट 1 वाज अ वेरी ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस कि एरोगेंस क्यों रखना. दैट विल नॉट टेक यू एनीवेयर. एरोगेंस विल लिटरली नॉट टेक यू एनीवेयर. Thank you so much, Aaron.